Hello, dear students. Today I am going to start the last concept of my years of central tendency, chapter number 14th. Name of the chapter is statistics. So let us start. We have already covered topics: introduction about statistics and collection of data. Third one is presentation of data, graphical presentation of data. Collection of data means to say that we will divide the data in between two types: primary sources of data and secondary sources of data. Presentation of data means textual presentation, tabular presentation, or diagrammatical presentation. In which way, how we will present our observed data, collected data, primary data, secondary data. And graphical representation of data, we have covered the three topics: histograms, bar graphs, and last one is frequency polygons. Bar graphs only in single types and histograms is two types: equal width and varying width. Varying width means not equal width, and frequency polygons third one and last one. Graphical representation means which data we have collected through primary sources, secondary sources, collecting it, organizing it, tabulating it. After that, we can also represent through graphical, pictorial, diagrammatical, GUI based, graphical user interface, colorful way. There are so many options under graphical representation of data, but here only we have covered only three types. For example, through pie diagrams, through donut diagrams, bar graphs, frequency ogive curve, Lorentz curve, graphical representation of data. Now today we are going to complete this chapter number 14. Last topic is measures of central tendency. Basically, this is the tool to measure the central tendency. Only single item which represents the whole data, represents the whole collected data, that is known as measures of central tendency. Under this topic we will be cover mean, median and mode. Most important. Just here is the initial stage of measures of central tendency. When you will be promoted in 10th class, then it will be in full-fledged manner measures of central tendency. So अब हम स्टार्ट करते हैं और आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है मीन, मीडियन, मोड को. बेसिकली दिस इज द स्टैटिस्टिकल टूल. There are also so many tools as like correlation, regression, skewness, index numbers, correlation, standard deviation, variances, coefficient variance, quartile, percentile, decile, quartile. ठीक है जी. There are so many ways to represent the data through statistical tools. 14.5 पर यहाँ पे एक्सरसाइज का नेम है जी 14.4. बहुत स्मॉल सी एक्सरसाइज है, ओनली 6 क्वेश्चंस है एंड इंटरेस्टिंग. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं इसका. देखिए, इंट्रोडक्शन में जस्ट आपने 3 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना इसको. जस्ट मीन, मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड. फर्स्ट ऑफ ऑल मीन देखिए. मीन क्या होता है? एवरेज निकालना, औसत, माध्य निकालना. ठीक है, जैसे माध्य, हिंदी में इसको माध्य, माध्यक एंड बहुलक भी बोला जाता है. मीन, मीडियन, मोड को. माध्य देखिए औसत, जैसे हम किसी की कहते हैं औसत एवरेज क्या है, हमारी बाइक की, कार की औसत एवरेज क्या है. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? ये सिंबॉलिक कोड है इसका मीन फाइंड आउट करने का. जस्ट आपने मीन फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है और कुछ इसमें ज़्यादा गो थ्रू नहीं करना. जस्ट मीन का ये वाला फॉर्मूला. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितना भी डाटा गिवन है हमारे पास उसका सम कर देंगे. ओवर में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि कितनी है जो ऑब्जर्वेशंस हमने
काउंट करिए, ऑब्जर्व करिए, राइट डाउन करिए, नोट डाउन करिए वो, ठीक है जी। ये तो है मीन का फॉर्मूला। सेकेंड मीडियन मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ध्यान से देखना, जो कंफ्यूजिंग कभी कई बार स्टूडेंट्स को होती है, मीडियन में ही रहती है, बट इतना ये कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है। अगर इसको ज़रा सा आप अंडरस्टैंड करो कि कहना क्या चाहता है, इसका जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, डेटा को अरेंज करना भूल जाते हैं, बस ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज उनको फॉर्मूलाज पुटअप करना आता है, सब कुछ। सबसे देखो, जो हमने मीन करा है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके मार्क्स हमने कैलकुलेट करने हैं कि टोटल कितने आए, हम परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, टोटलिंग करके ओवर में जितने नंबर्स होते हैं उसको ओवर में ऑब्लिक लगा के, ठीक है, करके उसका आंसर आ जाता है हमारे पास मीन का। मीडियन में ऐसा कुछ नहीं करना। मीडियन का जो सबसे फर्स्ट रूल है, सभी आइटम्स को n मान लेना। सपोजिशन लेट ऑल नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑल नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू n। सेकंड जो मेन इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसको सभी स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं, उस कारण उनका आंसर कहीं कुछ मिल जाता है सही, कहीं कुछ रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ आइटम सिमिलर अगर अरेंज भी करते हैं फिर भी वो उसी पोजीशन में आते हैं, तो कई बार उनका आंसर कुछ पॉइंट्स तक किसी स्टूडेंट के साथ मैच कर जाता है, कई बार नहीं। बट ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। अरेंज ऑल आइटम्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपकी मर्जी है, जैसे भी आप वो कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, डिसेंडिंग मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, स्टेप नंबर 3। अब हमने जो ये टोटल नंबर ऑफ हमारी आइटम्स हैं वो हमने देखनी है कि n कितना है। ये 2 स्टेप्स हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में होता है कि जो लूप है प्रोग्रामिंग का, अगर उसको स्टेप 3 ओके लगा तो स्टेप 3 को एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो वो स्टेप 4 को एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसे ही आपने चेक करना है कि जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं, क्या वो ओड है या वो फिर इवन है, ठीक है जी, इवन। अगर तो वो ओड हैं, ओड मीन्स टू से दैट 1 3 5 7, आप सभी को पता है ओड नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। अगर ओड है, जो फुल डिवाइडेबल नहीं होते, ठीक है जी, नीचे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता ही बचता है, ठीक है। वो एक इसकी ये पेशान है। दूसरी क्या है जी, अगर आपने वैसे काउंट नहीं करनी आइटम्स, व्हेन वन आइटम कम्स इन सेंटर, जितनी भी टोटल आइटम्स गिवन है हमारे पास, उनमें से एक किसी आइटम देखना कि सेंटर में कितनी आइटम्स आ रही हैं। अगर तो एक सिंगल आइटम है, सपोज इसी में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, देखो काम बन गया। देखो यहाँ से देखिए, ये तो वैसे जस्ट आपको मैंने ऑड नंबर्स की एग्जांपल दी थी, पर यहाँ पे ये भी चलो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है कि एन ऑड कब आता है। एन ऑड तब आता है जब आइटम्स टोटल 7 होएं 5 होएं, ठीक है, वो सेंटर में एक सिंगल आइटम हमारे पास बच जाती है, ये वाली, इफ़ एन इज़ ओड। तो इसकी ये भी पहचान है, बट आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एन को काउंट करना है। अगर वो ओड है तो आपने ये वाला फॉर्मूला फिट कर देना है। देन मीडियन ऑफ nth टर्म, यहाँ से याद रखना एन की मतलब कि मीडियन का आंसर नहीं आएगा अभी हमने मीडियन की टर्म निकाली है, nth टर्म, यानी कि जो आपने डाटा अरेंज किया है, जो गिवन डाटा अरेंज किया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसकी टर्म निकालिए। जौन सी वो टर्म पे होगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है जी। n+1 अपॉन में 2th टर्म, अगर n ओड है, अगर n इवन है, ये दिस इज़ द मोस्ट, इसको ज़रा अच्छे से करना, बस यही है। अदरवाइज इस चैप्टर में कुछ नहीं, मीडियन ही है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, वैसे इतना भी नहीं, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, अगर n इवन है, इवन के कैसे पेश आना है, एक तो आप नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर सकते हो। सेकंड बात, अगर आपसे सपोज ऑफ दैट डाटा बहुत एक्सेस में है, लार्ज में है, अबंडेंट है, एक्सेस में है, ठीक है, तो इनार्मस डाटा आप काउंट ना कर पाओ, तो हम क्या करते जाते हैं, एक आइटम इधर से क्रॉस करी, एक लेफ़्ट एक राइट, एक लेफ़्ट एक राइट, एक लेफ़्ट, ऐसे करते जाते हैं, ठीक है। अगर सेंटर में 2 आइटम्स बची हुई हैं हमारे पास, अगर सेंटर में 2 आइटम्स, इट मीन्स
यहाँ पे मीडियन का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। या आप ऐसे देख सकते हो, या फिर जस्ट आपने क्या करना, सारी नंबर ऑफ़ आइटम्स को फटाफट से काउंट कर देना। अगर वो नंबर ऑफ़ आइटम्स इवन आती है 2, 4, 6, 8 की फॉर्मेशन में आती है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के मीडियन फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूले को लगाने का मतलब वो nth टर्म फाइंड आउट होएगी, मीडियन ऑफ nth टर्म। nth टर्म का मतलब जो हमने डाटा अरेंज किया है उनमें से कितने नंबर वाली आइटम आएगी। मान लो 5 आया इसका आंसर, तो 5th नंबर आंसर होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सपोज ऑफ दैट 5th, ये 10 आंसर होगा अगर उसका। ठीक है जी। टर्म बोले nth टर्म, इनकी डिवाइडेशन करके यहाँ पे पूरा इसको सॉल्व करके, अगर n इवन है, बस अगर n इवन है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1, उसको ब्रैकेट में राउंड ब्रेस में बंद करके ओब्लिक में 2 और कंप्लीट को पूरे को जो स्क्वायर ब्रेस होती है आपकी, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, उसमें बंद कर देना। अगर n ओड है तो ये वाला, ये तो हो गया जी मीन और मीडियन। देखिए मीन और मीडियन का माध्यक, माध्यक हिंदी में कहते हैं, इसका मीनिंग भी यही हुआ एक तरह से मध्य। जो मीडियन होता है वो कहता है कि जितनी आइटम्स गिवन है उसको एक बारी अरेंज कर दो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, उसके बाद सेंटर की आइटम टर्म उठा लेनी है, माध्यक। तो इसलिए इसको हिंदी में माध्यक बोला गया। औसत तो आपको पता है, सभी को टोटल करके जितनी टोटल नंबर है उससे हम एवरेज निकाल लेते हैं। अब आती है जी टर्न अपनी मोड की। देखिए आपने ऐसी अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लेना सभी एज इट इज़। अब आती है जी टर्न मोड। देखो मोड तो बहुत बहुत ईजी है, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपको। मोड का हिंदी में मीनिंग होता है बहुलक, यानी कि जो आइटम सबसे ज़्यादा बार आए, दैट इज़ नोन एज मोड। यह जेड इसका सिंबॉलिक सिंबल है। ठीक है, सम ऑफ द टाइम्स आप कई बुक्स में देखोगे और कई बार नहीं भी मिलेगा आपको जेड ऐसा लिखा हुआ है। सीनियर क्लासेस में होगा, 10th 11th 12th वगैरह में। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, ऑब्जर्वेशन दैट कम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज़ नोन एज मोड। कोई भी डाटा देखो अगर तो अरेंज कर रखा है, यहीं से आपने एक इसका जस्ट आपके लिए अच्छी सी बात यह कि जो मीडियन में आपने डाटा अरेंज किया हुआ है यहीं से मोड फाइंड आउट करने की कोशिश करना इजी रहेगा। अगर आप इसको उल्टा पुल्टा करोगे, यानी कि मीन फिर मोड फिर मीडियन, नहीं, काम खराब हो जाएगा, मतलब गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे मोड को ऐसे फाइंड आउट करोगे। क्योंकि देखो वैसे जो मीन और मोड है वो नहीं कहता कि डाटा अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, सिर्फ मीडियन के केस में डाटा अरेंज करना होता है। ठीक है जी, सिर्फ मीडियन के केस में डाटे को अरेंज किया जाता है। पर जो मोड है, कई बार क्या होता है, कोई आइटम ऐसी होती है अगर हम ऐसे टिक लगा के देख रहे हैं कि कितनी बारी आई है कितनी बारी, हमसे कुछ स्किप हो सकता है। पर अगर हमने डाटा अरेंज कर रखा होता है उसमें से हम मोड फाइंड आउट करते हैं तो इजीली एकदम से एक्यूरेट मोड फाइंड आउट होता है। तो याद रखना जो मीडियन का डाटा हमने अरेंज किया हुआ है, मीडियन का डाटा अरेंज किया असेंडिंग या डिसेंडिंग में से, जल्दी से मोड को उसमें से फाइंड आउट करके आंसर निकाल देना है। बस अब आपने मीन भी बहुत ईजी है, मोड भी ईजी है, जस्ट मीडियन की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है सो दैट कि आपके सभी कंसेप्ट्स मीन मीडियन मोड के क्लियर होते जाएं। क्योंकि 10th में फुल फ्लैश्ड है, जस्ट 9th में इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब जस्ट आपको इसकी जैसे कहते हैं कि इसकी राहों पर चलना सिखाया आपको मीन मीडियन मोड की। तो यहीं से अगर आप बेस अच्छा कर लोगे कि है क्या, फिर 10th में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, इसी के साथ ही आपका इंट्रोडक्शन पार्ट मीन मीडियन मोड का कंप्लीट होता है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।